والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ساری شریعتوں کا منشا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 3 آیت میں انسانوں کو باور کرا دیا، والذین یؤمنون بما انزل، کہ لوگوں تمہارے نبی کے آنے سے پہلے، تمہارے نبی پر کتاب اترنے سے پہلے، کلام اللہ دنیا میں آنے سے پہلے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی شریعت حاصل ہونے سے پہلے اللہ نے کہا کہ جو چیزیں اللہ کے نبی سے پہلے دنیا کے اندر مل چکی ہیں، یاد رکھنا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ کامیابی کا پرچم اسی ٹائم ملے گا جب آپ یہ یقین کریں گے کہ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اللہ نے ساری شریعتوں کو ختم کر دیا ہے۔ یہ انسان کا اسلام کا ایک تقاضا ہے، شریعت اسلام کا ایک بڑا جز اور بڑا حصہ ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو ان جانکاریوں کو اپنی ذمہ داریوں میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ دوستو شریعت کا تقاضا ہے کہ اللہ نے جو جو چیزیں پہلے دی وہ ساری چیزوں کو محمد الرسول اللہ کی شریعت کے اندر پیوست کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ہمارے نبی کے آنے سے پہلے اللہ نے یہ مبارک دن موسیٰ کو دیا، بھائی جمعہ کا دن دوں گا، آپ اس جمعے کے دن کی قدر کر لینا۔ جب انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے اپنا ٹائم ہفتہ چینج کر لیا، بدل لیا۔ اللہ نے وہ دن بھی منع کیا، بھائی یہ بدماشیاں مت کیا کرو، ابھی یہ موسیٰ کی قوم کا واقعہ ہے، اللہ نے کہا ایسی ایسی بدماشی مت کرو۔ تو انہوں نے جمعہ کا دن بدل دیا اور بدل کر کہا کہ بھائی ہمارے یہاں جمعہ کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہوتا، ہمارے یہاں ہفتے کا دن سب سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد ان کے بعد والی قوم کو کہا گیا آپ کے یہاں بھی سب سے بہترین دن جمعہ ہے، انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے ہفتہ کو بھی نہیں مانا، جمعہ کو بھی نہیں مانا، انہوں نے کہا ہمارے یہاں سنڈے کا دن یعنی اتوار کا دن سب سے بہتر ہے۔ یعنی یہود و نصارہ کی تاریخ میں لکھا ہے کہ ہفتے کا دن، شنیوار کا دن، سنڈے اور اتوار کا دن سب سے بہترین ان لوگوں نے چنا تھا، جبکہ بارگاہ الہی نے طے کر دیا کہ لوگوں جمعہ کا دن مبارک گھڑی ہے، لوگوں جمعہ کا دن مبارک دن ہے، اس دن کے اندر جو تم اللہ سے مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیب کرے گا۔ لیکن دوستو نہ تو یہود نے مانا نہ نصارہ نے مانا۔ الحمدللہ تاجدار مدینہ کے امتی، اللہ کے نبی کے لاڈلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے چہیتوں نے اللہ کے نبی کی اس ادا پر قربان ہونا پسند فرما کر دنیا کے سامنے اعلان فرمایا کہ لوگوں اگر دنیا کے اندر سب سے مبارک دن کوئی کہلایا، پیارے نبی نے فرمایا سید الایام الیوم الجمعہ، کہ لوگوں اگر سرداری کا دن کسی دن کو دیا اللہ کے نبی نے کہا وہ جمعہ کا دن ہے۔ یعنی 3 نبیوں کو دیا، کسی نے پسند، 2 لوگوں نے منمانی کیا، تیسرے ماننے والوں نے جمعہ کو پسند کر لیا۔ الحمدللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی کی پیاری امت نے جمعہ کا دن کو مبارک مانا۔ دوستو اس لیے جمعہ یہ اجتماع جمنے کا نام ہے، اور الوداع جمعہ آج ہماری زبان پر ایک لفظ آتا ہے، ہمارے سے پوچھتے ہیں، اور بھی بہت سارے علماء مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حضرت آج جمعہ الوداع ہے، کیا اس کے بھی کوئی مسائل ہیں؟ دوستو یقیناً رمضان کی ہر گھڑی اللہ نے مبارک بنایا، رمضان کی ہر ساعت اللہ نے مبارک بنایا، اور جمعہ کے دنوں کے اعتبار سے اللہ نے یقیناً یہ جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معظم اور مبارک بنایا۔ لیکن دوستو ان کی کوئی الگ فضیلتیں نہیں ہیں، اور جمعہ کی جو فضیلتیں ہیں آج کے جمعہ کی بھی وہی فضیلت ہے، اور جمعہ کے دن اللہ نے جو مبارک گھڑی کو شامل کیا ہے آج کے دن کے اندر بھی اللہ نے اسی گھڑی کو
शुमार करके रखा है। दोस्तों याद रखिएगा, कल क़यामत का मैदान सजेगा। जब इंसानों के वहाँ जब क़यामत का मैदान कायम होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला कुर्सियाँ लगाएंगे। आपने सुना है, मेज़बान अल्लाह, मेहमान आप, मेज़बानी करने के लिए अल्लाह तैयार हैं। मेहमान आपको अल्लाह बना रहा है। मालिकुल मुल्क, खालिक कायनात के आप मेहमान बनने वाले हैं। सबसे पहली चेयर और सबसे पहली कुर्सी अल्लाह ने अपनी सजाई है मैदान महशर, क़यामत के मैदान के अंदर। उनके बाद दूसरी कुर्सी नबियों का अल्लाह तबारक व तआला सजाएंगे। तीसरे दर्जे पर अल्लाह उलमाए किराम की कुर्सियों को सजाएंगे। उनके बाद शुहदा का नंबर आएगा। उनके बाद और नबियों का नंबर और लोगों का नंबर आएगा। दोस्तों अपने अपने ज़माने के एतबार से जितने भी लोग अच्छे होंगे अल्लाह तबारक व तआला उनकी कुर्सियाँ लगाएंगे। अल्लाह अपनी कुर्सी लगाने के बाद अल्लाह कहेगा कि तमाम नबी आ जाओ। फर्स्ट लाइन के अंदर मेरे बाद नबियों का मकाम सजेगा। नबियों के बाद अल्लाह तबारक व तआला सहाबा का मकाम तय फरमाएंगे। सहाबा का मकाम तय फरमाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उलमा के लिए मकाम तय फरमाएंगे। उनके बाद शुहदा और सालिहीन का नंबर होगा। औलिया अल्लाह का मकाम सजेगा। दोस्तों अल्लाह कहेगा, ऐ लोगों, हमने दुनिया के अंदर ऐशो आराम की चीज़ें तुम्हें मुहैया किया था। मैदान महशर के अंदर अल्लाह कहेगा, मैंने जन्नत का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोल दिया है। जन्नत के फैसले मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। ए उम्मती मोहम्मदिया के मानने वालों, खुदा की कसम याद रखिएगा, ये जुमा का इतना बड़ा मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया है कि इसी जुमा के सदक़े में आपको सबसे पहले जन्नत में दाखिला होगा। इसी जुमा के सदक़े के अंदर मैदान मजीद कायम किया जाएगा और मैदान मजीद के अंदर कायम करके अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, सारे अंबिया आ जाओ, सारे सहाबा आ जाओ, सारे उलमा आ जाओ। इन तमाम को जमा करने के बाद अल्लाह कहेगा, मैंने तुम तमाम की मग़फ़िरत कर दी। जब सबकी मग़फ़िरत हो जाएंगी और जन्नत के दरवाज़े अल्हम्दुलिल्लाह खुल चुके होंगे, उम्मत मोहम्मदिया को एक बड़ा इनाम मिलेगा। शायद आपने इस बयान को सुना नहीं होगा आज तक। उम्मत मोहम्मदिया को एक बड़ा इनाम मिलेगा। अल्लाह तबारक मैदान मजीद, इस मैदान का नाम होगा मैदान महशर के अंदर अलग एतबार से एक मैदान कायम होगा, एक जगह कायम होगी। उस जगह का नाम मैदान मजीद है। अंबिया भी हैं, औलिया भी हैं, सहाबा भी हैं, उलमा भी हैं, गौस अब्दाल भी हैं। वहाँ पर कुतुब और पीर भी हैं, अपने ज़माने के औलिया अल्लाह भी हैं। अल्लाह तमाम से कहेगा, ला यमलिकून शफ़ा इल्ला मन इत्तख़ज़ इंदर रहमान अहदा। आज किसी की ज़ुबान नहीं चलेगी, ज़ुबान उसी की चलेगी। मैं जिसको बुलवाऊंगा उसी की ज़ुबान खुलेगी। मैं जिसको बात करवाऊंगा उसी की ज़ुबान से बोली निकलेगी। मैं जिनको आर्डर दूंगा, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। सूरह यासीन के अंदर अल्लाह ने कहा, मैं सारी चीज़ें बन करके कहूँगा, ला यमलिकून शफ़ा इल्ला मन इत्तख़ज़ इंदर रहमान अहदा। अरे मैंने तय कर रखा है। दोस्तों उम्मत मोहम्मदिया को खुदा की कसम मेरे नबी का सदका है। इसीलिए शायर ने कहा, किताब फितरत के सरवरक पर रकम जो अहमद लिखा न होता, वो नक्श हस्ती उबर न सकता, वजूद लोहो कलम न होता, वो जो इमाम उमम न होते, ये दुनिया का निज़ाम न होता। खुदा की कसम ताजदार मदीना का निज़ाम अगर दुनिया के अंदर सजाया नहीं जाता, प्यारे नबी का चेहरा अगर दुनिया के अंदर ना आता, ये दुनिया को रोनाई नसीब न होता। प्यारे नबी की रौनकें अल्लाह तबारक व तआला अगर दुनिया के अंदर नाजिल न फरमाते, ये दुनिया की लाइटें बेनूर हो जाती, चांद सूरज सितारे सैयारे तमाम के तमाम बेनूर हो जाते। अगर सारी चीज़ों के अंदर अल्लाह ने अगर कहीं से लाइट सजाया है, खुदा की कसम मेरे और आपके नबी का सदका है। उस टाइम वो तो नबी के सदक़े में मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही
हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। दोस्तों, ये उसी का सदका है। ऐसे टाइम के अंदर नबियों की चेयर उलमा से आपसे कहेगा, अल्लाह राज़ी का परवाना देगा, अल्लाह रिज़ा का परवाना, अल्लाह खुशनुदी का परवाना उम्मत मोहम्मदिया को नसीब फरमाएंगे। ए मस्जिद आला वालों, आपको खुशनुदी का परवाना अल्लाह ने अता फरमा दिया। रज़ामंदी का ऐलान क़यामत के मैदान के अंदर अल्लाह ने कर दिया। अब वहाँ कहेगा, कोई मसला याद है, कोई मसला आपको पूछना है, तो लोग कहेंगे किसके पास जाएं? ए अल्लाह, मसला पूछने किससे जाएं? खुदा की कसम, हाय कुर्बान जाऊं अल्लाह तेरी ज़ात पर, खुदा की कसम मेरा अल्लाह कहेगा, जाओ जिन खतीबों से तुमने जुमा का बयान सुना है, अरे जिन उलमा का बयान तुमने सुना है, जाओ उन उलमा के पास, तुम उनसे जाके मसला पूछो कि हमारी क्या कमी बाकी है। खुदा की कसम ध्यान से सुनिएगा, यह बहुत काम की बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैदान मजीद के बाद, जन्नत और जहन्नम का फैसला होने के बाद अल्लाह कहेगा, कोई मसला आपका बाकी है? कि अल्लाह सारी चीज़ें मिल गई, जन्नत हमें मिल गया जिसकी हम तड़प कर रहे थे, जो कोशिशें हमारी थी, ए अल्लाह हमने सारी चीज़ें कर ली, मिल गया। एक मसला याद नहीं है। एक मसला उनको याद दिलाएंगे आपका खतीब, एक मसला उनको याद दिलाएंगे आपका इमाम, एक मसला उनको याद दिलाएंगे मोहल्ले का आलिम दीन, एक मसला आपको याद दिलाएंगे आपके ताल्लुक़ के उलमा किराम। अल्लाह कहेगा, जाओ जिन खतीबों से तुमने बयानात सुने हैं, अरे उनसे पूछो जाके कि क्या मसला हमारा बाकी रह गया। सारी की सारी उम्मतें दौड़ती हुई अपने खतीबों के पास चले जाएंगे। मस्जिद आला इधर, मस्जिद आज़म उधर, मक्का वाले उधर, मदीना वाले उधर, तमाम के तमाम मुख्तदियान अपने अपने उलमा किराम के पीछे जाएंगे, अपने उलमा से जाके पूछेंगे, अपने खतीब से जाके पूछेगा, हजरत मेरा कौन सा मसला बाकी रह गया? अल्लाह ने जन्नत का परवाना दे दिया, अल्लाह ने जन्नत की सर्टिफिकेट हमें नसीब फरमा दिया। वालिम दीन आपसे कहेगा कि ऐ लोगों, अल्लाह की इबादतें तुमने की हैं। अल्लज़ीना, मैंने पिछली जुमा बयान किया था नूरानी में कि ऐ लोगों, अल्लाह ने कहा, अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैब व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युक़िनून, कि अल्लाह को आपने नहीं देखा, अल्लाह का यकीन दिलों में सजाया। मौत को आपने नहीं देखा, मौत का यकीन दिलों में सजाया। बीमारी को आते हुए आपने नहीं देखा, बीमारी का यकीन दिलों में सजाया। हवा को चलते हुए आपने नहीं देखा, हवा का यकीन दिलों में सजाया। दोस्तों, लोगों को मरते हुए यकीनन आपने देखा होगा, मलकुल मौत को आते हुए, मलकुल मौत के साथ 70,000 फरिश्तों को आते हुए आपने नहीं देखा होगा, लेकिन उनका यकीन आपने सजाया। क़यामत का मैदान शायद आप नहीं देख पाएंगे इस टाइम, लेकिन क़यामत का मैदान का यकीन आपने दिलों के अंदर सजाया। प्यारे नबी का चेहरा आपने अपनी नज़रों से नहीं देखा, लेकिन प्यारे नबी की मोहब्बत अपने दिलों के अंदर सजाया। कुरान करीम को गारे हिरा में उतरते हुए आपने नहीं देखा, लेकिन कुरान की मोहब्बत आपके दिलों के अंदर सस्ता है। गारे हिरा के अंदर इबादत करते हुए नबी को आपने नहीं देखा, गारे हिरा की मोहब्बत आपके दिलों के अंदर सस्ता है। गारे सौर के अंदर बैठते हुए प्यारे नबी को आपने नहीं देखा, गारे सौर से मोहब्बत आप करते हैं। मस्जिद कुबा जो इस्लाम की पहली मस्जिद है, मस्जिद कुबा को बनते हुए आपने नहीं देखा, मस्जिद कुबा की मोहब्बत आपके दिलों के अंदर सजा है। मस्जिद नबवी को बनते हुए आपने नहीं देखा, लेकिन मस्जिद नबवी की मोहब्बत आपके दिलों के अंदर सजा है। मेरे नबी का मेज़बान हजरत अबू अय्यूब अंसारी को आपने नहीं देखा, लेकिन अबू अय्यूब अंसारी की मोहब्बत आपके दिल के अंदर सजा है। दोस्तों, ये सारी की सारी मोहब्बतें आपके दिल के अंदर कहाँ से आई? अल्लाह ने कुरान में कहा, अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैब। अरे यही तो नक्शा है, यही तो कुरान का पैकर है जो अल्लाह ने आपको दिया। आपने तो ये सारी चीज़ों को नहीं देखा। किसी ने मौत को आते हुए देखा है? यकीनन नहीं देखा, लेकिन मोहब्बत है। दोस्तों, वहाँ अल्लाह कहेगा आपसे, हमारे से, हमारे भाइयों से,
हमारे मासूम बच्चों से कि लोगों चले जाओ, अब आपका एक टाइम बचा है, लोगों अपने उलमाए किराम से मसला पूछो, यानी जन्नत का सर्टिफिकेट मिलने के बाद, जन्नत के अंदर दरवाज़ा आपके लिए खुल जाने के बाद, जन्नत का दाखिला नसीब हो जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला आपसे कहेगा कि जाओ अपने ख़तीबों से मसला पूछ कर आओ। आप जब अपने ख़तीब के पास जाएंगे मैदान मस्जिद के अंदर, जब आप उनसे मसला पूछेंगे कि भाई अब हमें क्या करना है, वो ख़तीब आपका बताएगा आपने अल्लाह को नहीं देखा, अल्लाह का यकीन दिलों में सजाया, उस अल्लाह से कहो कि ऐ अल्लाह, रुकू के अंदर सुभान रब्बियल आला हमने कहा, सजदे के अंदर सुभान रब्बियल अज़ीम हमने कहा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा हमने कहा, सना सुभान का हमने नमाज़ों में पढ़ा, कुरान की आयतों को हमने पढ़ा, हम रुकू में गए आपको याद किए, अंताबुदल्लाह कान्नका तरा फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। वो आलिम दीन आपको कहेगा, अल्लाह से कहो कि ऐ अल्लाह, हमने आपको देखा नहीं था लेकिन आपके रुकू पर हमने यकीन किया, ऐ अल्लाह आपको हमने देखा नहीं था लेकिन आपका यकीन हमारे दिलों के अंदर आया, ऐ अल्लाह आपको देखा नहीं था, सजदे के अंदर सर हमने झुकाया आपकी रज़ा के लिए। ऐ अल्लाह, महबूब की मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि जब तक महबूब का दीदार न हो जाए उस टाइम तक मोहब्बत कामयाब नहीं होती। ऐ अल्लाह, मेरे उस्ताद ने कहा, ऐ अल्लाह मेरे ख़तीब ने कहा, ऐ अल्लाह मेरे आलिम दीन ने कहा, ऐ अल्लाह मेरे इमाम ने कहा कि जब तक महबूब की मोहब्बत आप उनको देख नहीं पाएंगे वो टाइम तक मोहब्बत कामयाब नहीं बनेंगी। अल्लाह कहेगा कि आ जाओ, तुम हो और हम हैं।